پوائنٹ نمبر 6. اچھا جناب ٹھیک ہے، خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی بھی کتا کھو میں ہے. یہ کتا کھو میں کیا پنجابی میں محاورہ ہے کہ وہ 20 ڈول نکالنے ہوتے ہیں نا کنویں کو پاک کرنے کے لیے، لیکن کتے کو بھی نکالنا شرط ہے. 20 ڈول نکالے اور پھر بدبو آتی رہی تو پہلے کتے کو نکالنا ہوگا، اس کے بعد 20 ڈول نکالیں گے تو تب کنواں صاف ہوگا. تو لیکن کنواں جب تک کتا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کی آلودگی ختم نہیں ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا رفع دین، خلفائے راشدین بھی قسم. لیکن یہ بتائیں کہ اس کا حکم کہاں ہے کہ رفع دین لازمی کیا جائے اور جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنت ہے، کر لو ٹھیک، نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، تو نماز تو ہو جاتی ہے نا. اب پیچھے مینٹالٹی کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ والی خرابی، سورہ توبہ آیت نمبر 31. انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہ نہ سمجھیں یہود و نصارہ کا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ میں تھی میری امت میں بھی پیدا ہوں گی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں بھی داخل ہوا میری امت بھی یہی کام کرے گی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. بخاری میں حکم ہے رفع الیدین کرنے کا. مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے 631 نمبر کتاب الاذان میں صحیح بخاری میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہ حکم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر بات کر کے پوری کی پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے. اب آپ ایک ایک رکن پہ کہیں گے تو ہم پھر اس میں پہلا تو الزامی جواب دیتے ہیں. آپ پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رفع الیدین کیا کرو، باقی والے نہ کیا کرو. وہ بھی حکم کوئی نہیں. حکم اس کے اندر امپلائیڈ ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. بات ختم ہوگی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو مالک بن حویرث کو ابو قلابہ تابعی نے دیکھا، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. یہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے، بخاری اور مسلم دونوں میں. انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے، رکوع میں جاتے وقت اٹھائے، رکوع سے اٹھ کر اٹھائے، اور پھر اینڈ پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے. تو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی، تو حکم تو امپلائیڈ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ بات ماننی نہیں. تو پھر میں ایک حکم جو ہے بائی نیم مینشن کرتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251، وہی حدیث جو ایک صحابی نے تیز نماز پڑھی تھی تو 3 دفعہ آپ نے اسے نماز پڑھوائی. چوتھی دفعہ جب نماز سکھائی تو اس میں فرمایا پھر کہ جب دوسرا سجدہ کرو پہلی رکعت کا، اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو یہ جلسہ استراحت کا حکم آ گیا نا، تو یہ کریں نا؟ نہیں کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ جلسہ استراحت کا تو حکم ہے، بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے. تو پھر کہیں گے نہیں یہ جائز ہے بیٹھنا بھی اور وہ بھی ٹھیک. اب یہاں حکم بھی ہے، پھر جائز ناجائز والا چکر شروع کر دیا. تو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر. اور بخاری میں الگ سے مالک بن حویرث ہی روایت کرتے ہیں جلسہ استراحت کی 823 اور 824 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑا ہونا، تو یہ جلسہ استراحت کا ذکر وہاں پر موجود ہے. تو یہ الحمدللہ عمل ہے. اب اس پہ حکم ہے، اب اس پر عمل کریں. اور ویسے ان جنرل جوامع کلمات کے تحت پوری نماز کا حکم ہے. تو بھائیو میں نے پچھلی دفعہ بھی علماء عرب کے بارے میں بتایا تھا، آج میں تھوڑا کھل کے بتا دوں کہ علماء عرب نے، جہاں میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پوری امت کے اندر رفع الیدین کی سنت اب انٹرنیشنلی چینلز کے ذریعے پہنچی کہ امام کعبہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آمین بھی اونچی ہوتی ہے. یہ بہت ان کے پازیٹیو پہلو ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی حج عمرے کے بعد لوگوں میں اب ٹالرنس آئی ہے. ورنہ ایک وقت تھا آج سے 20-30 سال پہلے تک گاؤں ایریا میں اگر کوئی رفع الیدین والا یا آمین اونچی والا گھس جاتا تھا تو مسجد کو دھوتے تھے. لیکن اب کافی ٹالرنس آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیبل نیٹ ورک کے ذریعے پوری دنیا میں سعودی عرب کا چینل لائیو دیکھا جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف میں تو جہاں بت توڑے گئے تھے ادھر تو ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین آتا تھا. پاکستان کے مولویوں کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا. تو اس پہ میں ایک ننگا جملہ بولتا ہوں کہ دودھ ہمیشہ بھینس کے نیچے سے صحیح ملتا ہے.
गवाला दूध देगा, कोई पानी मिला के देगा, कोई छप्पड़ का पानी भी बीच में शामिल कर देगा, जोड़ का भी। तो भाई यहां पर फिर वही है कि इतनी दूर बैठे हुए हैं, जो आया उसने अपनी मर्जी का दीन या लोगों को सिखा दिया, टूटी फूटी फॉर्म में सिखाया। तो वहां पर यह इस एतबार से जो न्यू मुस्लिम जब सऊदी अरब जाते हैं तो काफी फायदा होता है हरमैन शरीफैन में जाने का। लेकिन उलमा अरब की 3 खराबियां बहुत बड़ी हैं जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूं कि सुन्नत तरीके को नुकसान पहुंच रहा है। एक तो जलसा इस्तराहत उन्होंने छोड़ दिया, हालांकि हुक्म था जलसा इस्तराहत का, मैंने बता दिया। और अब्दुल्ला बिन बाज ने जो नमाज नबवी का तरीका छापा है अपना, मुफ्ती आजम सऊदी अरब 1933 से 1999 तक, 66 साल तक, उन्होंने अपनी नमाज के तरीके में ये लिखा है कि दूसरे सजदे के बाद भी बैठ के उठना चाहिए, लेकिन अगर कोई ना बैठे तो जायज है। भाई आपको किसने इख्तियार दिया कि आप अपनी मर्जी से फतवे निकालते फिरें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा रहे हैं कि दूसरे सजदे के बाद बैठ, सही बुखारी 6251। और आप ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करो, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तुम्हें किसने ये अथॉरिटी दी कि तुम ये बात करो कि खैर है? किसी को इजाजत नहीं है, चाहे वो मुफ्ती आजम सऊदी अरब हो, चाहे कोई भी हो, कोई ताबी क्यों ना हो। और जी ताबीन रफ़ा छोड़ गए थे, छोड़े, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क वहां से पड़ेगा जब सहाबी का नाम आ जाएगा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये गलती जलसा इस्तराहत, दूसरा रुकू के बाद हाथ बांधना, वो मैंने पिछली दफा 8 पॉइंट्स बताए थे कि पता नहीं कहां से इन्होंने ये मामला निकाल दिया। अबू हुमैद सादी की हदीस में वाज़ेह मौजूद है कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती। हर हड्डी अपनी जगह पर खड़ी हुई हालत में, नॉर्मल हालत में कहां होती है? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का इजमा है, हनफी, शाफी, मालकी, हंबली सब का, कि रुकू के बाद हाथ छोड़े जाएंगे। और मैंने वहां इल्मी गिरफ्त उनकी की थी। और तीसरा, सजदे में जाते वक्त वो पहले घुटने लगाते हैं और बाद में हाथ। हालांकि मैंने सही हदीस अबू दाऊद से बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हुक्म फरमाया कि ऊंट की तरह मत बैठो। और ऊंट को बिठा के किस तरीके से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऊंट को बिठा के गए हैं। मौलवियों ने उसकी तशरीहात नहीं करनी, उसके आगे अल्फाज हैं कि पहले हाथ लगाओ और बाद में घुटने लगाओ। और 803 नंबर सही बुखारी में जो हदीस है, उसके बाब की हेडिंग में इमाम बुखारी लेके आए कि अब्दुल्ला बिन उमर भी सजदे में जाते वक्त पहले हाथ और बाद में घुटने लगाते थे। और इसकी पूरी सनद जो है वो बाकी किताबों में, अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर और बाकी किताबों के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 खराबियां हैं उनके अंदर। अब वो मैं ट्रुथ रिवील करता हूं कि असल में हुआ क्या है, यहां पे मैं समझाता हूं। ये मसला आज तक किसी ने नहीं खोला कि ताबईन ने रफ़ुल यदैन करना छोड़ क्यों दिया था। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह अभी अब्दुल्ला बिन बाज ने किताब लिख दी ना कि दूसरे सजदे के बाद मर्जी है बैठ जाए, उठ भी जाए तो खैर है। अब वो इतनी बड़ी अथॉरिटी बने हुए हैं ना, अब 500-600 साल जब गुजरेंगे तो लोग कहेंगे जी देखो 500 साल पहले एक इतने बड़े मुफ्ती आजम अरबैन दे कह के गए ने कि जी दूसरे सजदे के बाद ना भी बैठे तो हर्ज नहीं। और अभी प्रैक्टिकली तो इमाम काबा कोई नहीं बैठता ना, डायरेक्ट खड़ा होता है और लोग देख भी रहे हैं। इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा और लोग जलसा इस्तराहत को भूल जाएंगे। किताबों में लिखा होगा, उस बंदे की अपनी किताब में भी, अब्दुल्ला बिन बाज की किताब में भी लिखा होगा, लेकिन उसके फॉलोअर्स कह रहे होंगे जी मुफ्ती साहब ने फरमा दिया, बस बुजुर्गों ने फरमा दिया, काफी है। ये होगा बिल्कुल इसी तरीके से ताबईन के दौर में भी चंद सुस्तुल वजूद लोगों ने, जो मैं समझता हूं, उन्होंने रफ़ुल यदैन करने में बड़ा तरद्दुद था। और ये मेरा जुमला भी याद रखें, रफ़ुल यदैन और जलसा इस्तराहत और सजदे में जाते वक्त हाथ पहले लगाना, ये नमाज की ब्रेकें हैं। इससे नमाज का सुकून बढ़ता है। जिसने फटाफट नमाज पढ़नी है ना, उसके लिए मुसीबत है ये चीज, क्योंकि वो पहले रफ़ुल यदैन करेगा सुकून के साथ, फिर भाई तो वो फौरन जाएगा, फौरन उठेगा। अब जो बंदा पहली रकत में बैठेगा, फिर सुकून से जलसा इस्तराहत के बाद हाथों पर इत्माद करके उठेगा, वो डायरेक्ट दूसरी रकत में उठे तो वो अपना 1 मिनट बचा लेगा। तो ये सुस्तियां करते करते, ये ताबीन के दौर में शुरू हो गई थी, करते उन्होंने कहा खैर ये छोड़ दे, खैर करते करते नमाज का हुलिया बिगड़ गया। ये मुझे समझ आई है कि ये मामला किस तरीके से खराब हुआ है। वरना अहले सुन्नत अहले तशय्यो, ये चंद एक मसाइल इतने क्रिटिकल, उनमें ये मुत्तफिक है रफ़ुल यदैन वाले मसले में भी, जलसा इस्तराहत में भी, और अहले तशय्यो भी सजदे में जाते हैं पहले हाथ लगाते हैं। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से अहादीस का जमा होना। तो ये असल में मसला इस तरीके से खराब हुआ है और ये सारे के सारे मामला फिर बिगड़ते चले गए और अब मुसीबत बन गई है हमारे लिए। हम बताते हैं लोगों को, उन्होंने किताबें पता, वो पॉइंट भी इंशाल्लाह आ रहा है कि मैं इसका भी जवाब इंशाल्लाह दूंगा। तो सुन्नत को हल्का ना समझें। ये जो लोग कहते हैं ना जनाब खैर ही है ना जी सुन्नत है, तो ये हदीस भी जामिया तिर्मिज़ी की सुन लें, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2154,
अल मुस्तदर लिल हाकिम में भी मौजूद और इमाम ज़ाबी ने भी मुवाफकत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लोगों पर लानत फरमाई है। और लानत का मतलब है ऐ अल्लाह इनको अपनी रहमत से दूर रखना। उनमें से छठा बंदा वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मेरी सुन्नत को जानबूझकर छोड़ देता है। आगे आप समझो, आप देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को छोड़ने वाला लानत का मुस्तहिक है जब उस पर यह बात खुल चुकी है। अब मुझसे यह ना फतवा लें कि उन ताबीन का क्या बना। हम अहले सुन्नत का तरीका यह है कि हम गलती पॉइंट आउट करते हैं, फतवा नहीं लगाते। जिस तरह हम कहेंगे कि अगर भाई आपने झूठ बोला तो आप लानत के मुस्तहिक हो जाएंगे, लेकिन आपको हम लानती नहीं कहेंगे झूठ बोलने पर भी। इसीलिए हम यजीद पर भी लानत नहीं करते। हाँ, यजीद लानत का मुस्तहिक हुआ, वो हमने कुरान और हदीस से साबित किया, लेकिन खुद नहीं भेजते। वो खुद हो जाए उसका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजने से मना फरमाया। रहा मसला इसका हुक्म वाला, तो फिर वही बात करूंगा कि पहले का हुक्म कहां पर है, और ये भी छोड़ दिया करें कभी कभार, ईद वाला रफुल ईदैन भी छोड़ दिया करें। ये वही इल्मुल कलाम वाला फक्की वाला जवाब कि ठीक है फिर पहले के साथ चिड़ क्यों है, पहले दूसरे और तीसरे के साथ चौथे के साथ चिड़ क्यों है, पहला भी छोड़े, डायरेक्ट आ गया माने अल्लाह अकबर कह के कि जी सुन्नत ही है। लेकिन ये सारे के सारे मामला चल रहे हैं जिद के ऊपर। अब सही बुखारी में अब जो मेरी तरफ से 3 जवाब है कि जो रफुल ईदैन करता है उसकी नमाज होती है या नहीं होती। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने 3 जवाब बनाए हैं बड़े तफक्कुर करके, वो आप सुन लीजिए। पहला जवाब सही बुखारी 791, ज़ैद ताबई कहते हैं कि हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक बंदे ने नमाज पढ़ी और बड़ी तेजी के साथ उसने रुकू और सजदे किए नमाज के। जब वो नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो ज़ैद ताबी कहते हैं हुज़ैफा इब्न यमान ने उसको कहा, सही बुखारी 791 नंबर हदीस, अगर तू इस तरीके से नमाज पढ़ता रहा तो तू उस तरीके पर नहीं मरेगा जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। अब मेरा भी जुमला सुन लें। आज वो जिंदा होते हुज़ैफा इब्न यमान तो मैं उनको कहता कि आप मेरा जुमला भी इसमें ऐड कीजिए कि जो बंदा रफुल यदैन नहीं करता रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, तो वो उस तरीके पर नमाज पढ़ता हुआ नहीं मरेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिखाया है। बस हम ये कहते हैं, नमाज होती है नहीं होती इसको छोड़े। दूसरा जवाब जुज़ रफुल यदैन में है, वही ताबईन वाला जो चक्कर शुरू हुआ था। 15 नंबर हदीस सही सनद से कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कंकरियां मारते थे उस बंदे को जो नमाज में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते हुए रफुल यदैन नहीं करता था। ये सहाबी मारते थे कंकरियां, यानी कि वो कहना चाहते थे वो सुस्तुल वजूद की क्या काम कर रहा है तू। कंकरियां मारते, छोटे छोटे पत्थर मारते थे ताकि उसको याद रहे, जैसे स्कूल में टीचर भी कभी डंडा मार के सजा देता है। अब्दुल्लाह बिन उमर कंकरियां मारते थे। उस वक्त सुस्तुल वजूद लोग आ गए थे। जैसे माजरत के साथ अब मैं कड़वी बात भी कर दूं, जैसे हमारे जो अहले सुन्नत में से अहले हदीस मकतब फिक्र के लोग हैं, अब उनके उलमा चीखते भी हैं लेकिन उनकी इमाम बात नहीं मानती। किस मामले में? नंगे सर नमाज पढ़ते हैं। हालांकि नंगे सर नमाज होने पर बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सबका इत्तफाक है, लेकिन सुन्नत के तो खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अलावा भी सर ढांप के रखते थे। और मैंने पिछली दफा भी बताया था कि सूरतुल अराफ में है कि अल्लाह की मस्जिदों में जीनत के साथ आओ, कम से कम नमाज के लिए तो जीनत बना लिया करें। नमाज का हिस्सा नहीं है लेकिन सुन्नत तो है। असहाबुल हदीस अहले सुन्नत वही होगा जो सुन्नत पर अमल करने वाला होगा। तो अब इनके उलमा ने लिखना शुरू किया लेकिन अवाम बात ही नहीं मान रही। और जो बंदा सर ढांपने में बात करता है उसको कहना है बरेलवियां नहीं गला शुरू करती हैं। तो ये बिल्कुल वही साब हुआ है कि रफुल यदैन करना छोड़ दिया। वो चलते चलते अब तो ताबईन के दौर में भी लोग रफुल यदैन छोड़ चुके थे, कुछ सुस्तुल वजूद लोग। तीसरा जवाब इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 241 हिजरी, उनसे इमाम अबू दाऊद ने जो मसाइल अहमद नकल किए हैं उसमें सफा नंबर 33 में है कि इमाम साहब से एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हुआ जो हमसे लोग करते हैं कि बताइए कि जो रफुल यदैन नहीं करता रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त उसकी नमाज हो जाती है कि नहीं। जरा जवाब सुने अहमद बिन हंबल का। वो कहते हैं मुझे यह तो नहीं पता कि उसकी नमाज होती है या नहीं होती। जरा जवाब देखें। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि नमाज होती भी है कि नहीं होती, ना मैं होने की गारंटी देता हूं ना होने की। अलबत्ता वो शख्स फी नफ्स ही नाकिस नमाज पढ़ने वाला तो है, नाकिस नमाज पढ़ने वाला तो है। यानी उन्होंने बिटवीन द वर्ड्स वही फतवे से बचने के लिए इस तरीके से कह दिया कि उसकी नमाज नाकिस तो है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रास्ता तो हटा हुआ है। और मैं बिल्कुल इस पे एग्री करता हूं इस मामले में कि वो जो सूरह मोहम्मद की आयत है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और अपने अमाल को बातिल मत करो। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया उसी के मुताबिक
عمل کرو.